Hello everyone. Welcome you in the today's session of controlled drug delivery system. In the last session we have discussed about the various approaches used to design the control release formulation. We have already discussed about the dissolution control release system in which we have seen how to prepare the encapsulated dissolution system and matrix type dissolution system. In the today's session, we are going to discuss about the diffusion control release system. So, what is the diffusion control release system? In this system, the rate controlling step is not dissolution rate but the diffusion of dissolved drug through the polymeric barrier. In this system, the rate controlling step is not dissolution rate, but the diffusion of dissolved drug through the polymeric barrier. It is the major process for absorption in which no energy required. इसमें कोई एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती है क्योंकि ये पैसिव प्रोसेस होती है. Basically, the diffusion process shows the movement of drug molecules from a region of higher concentration to one of the lower concentration until the equilibrium is attained. Basically, generally क्या होता है diffusion process में ड्रग का मूवमेंट होता है from higher region of concentration to one of the lower concentration. कब तक होता है? जब तक कि equilibrium अटेंड नहीं होता है. एंड इट इज द डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट अक्रॉस द मेम्ब्रेन. और ये जो डिफ्यूजन रेट है वो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है. जितना कंसंट्रेशन का डिफरेंस रहेगा मेम्ब्रेन के अक्रॉस उतना ज्यादा रेट से डिफ्यूजन प्रोसेस होगी. इन दिस सिस्टम रिलीज रेट इज डिटरमाइंड बाय its diffusion through a water insoluble membrane. The flux of drug J or rate of diffusion across the membrane is directly proportional to the concentration gradient and given by Fick's law of diffusion. Now, Fick's law states that J equal to minus D dC upon dx, and where the J is the flux and D is the diffusion coefficient in area upon time. dC upon dx is the concentration gradient and C is the concentration of the drug. X is the distance in the centimeter. There are two types of diffusion control system. First one is the reservoir diffusion system. Second one is the matrix diffusion system. So now we will discuss here one by one. First one is the reservoir diffusion system. In this system, a water insoluble polymeric material encloses a core of drug which control the release rate. इस सिस्टम में क्या होता है? वाटर इंसॉल्युबल पॉलीमेरिक मेम्ब्रेन का यूज करते हैं और इस मेम्ब्रेन के अंदर ड्रग की कोर को इनक्लोज करके रखते हैं और ये मेम्ब्रेन क्या करती है? ड्रग के रिलीज को कंट्रोल करती है. ड्रग विल पार्टीशन इनटू द मेम्ब्रेन एंड एक्सचेंज विद द फ्लूइड सराउंडिंग द पार्टिकल और टेबलेट. फिर क्या होगा कि ड्रग पार्टीशन होगी मेम्ब्रेन के थ्रू और एक्सचेंज हो जाएगा जो भी फ्लूइड है सराउंडिंग, तो उस फ्लूइड से ड्रग का एक्सचेंज होगा और ड्रग रिलीज हो जाएगी, है ना. इस तरीके से ड्रग का रिलीज हो जाएगा. एडिशनल ड्रग विल बी एंटर द पॉलीमर एंड डिफ्यूज टू द पेरिफेरली एंड एक्सचेंज विद द सराउंडिंग मीडिया. इस तरीके से लिक्विड के साथ में ड्रग का एक्सचेंज होगा और सराउंडिंग मीडिया में ड्रग रिलीज हो जाएगी. दिस इज द स्कीमेटिक डायग्राम of reservoir diffusion control drug delivery system. We can see that here at the time 0 there is no diffusion of drug, or here only the drug
core is there and that is enclosed by the polymeric membrane. ठीक है, और जैसे ही ये सराउंडिंग फ्लूइड में पहुंचती है तो यहाँ से ड्रग का रिलीज होना शुरू हो जाता है। ठीक है, इस तरीके से इसको हम देख सकते हैं कि ये हमारा रिजर्वर डिफ्यूजन कंट्रोल ड्रग डिलीवरी डिवाइस है। ठीक है, द पॉलीमर कॉमनली यूज्ड इन सच डिवाइस आर इथाइल सेलुलोज एंड पॉलीविनाइल एसीटेट। इस तरीके की जो डिवाइस बनती हैं उसमें पॉलीमर का यूज हम करते हैं वो इथाइल सेलुलोज और पॉलीविनाइल एसीटेट का यूज करते हैं। नाउ नेक्स्ट वन इज द मैट्रिक्स डिफ्यूजन सिस्टम। ए सॉलिड ड्रग इज होमोजीनियसली डिस्पर्स इन dispersed in a insoluble matrix and rate of release of drug is dependent on the rate of drug diffusion and not on the rate of solid dissolution. A solid drug is homogeneously dispersed in insoluble matrix. इसमें जनरली क्या होता है, सॉलिड ड्रग को insoluble matrix के साथ में डिस्पर्स कर दिया जाता है एंड रिलीज रेट ऑफ ड्रग इज डिपेंडेंट ऑन रेट ऑफ डिफ्यूजन, रेट ऑफ ड्रग डिफ्यूजन। और रिलीज ड्रग का रिलीज किस पे डिपेंड करता है, डिफ्यूजन पे, ना कि डिसोल्यूशन पे। ठीक है, ये इट इज द स्कीमेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोनोलिथिक मैट्रिक्स डिफ्यूजन कंट्रोल ड्रग डिलीवरी सिस्टम। नाउ नेक्स्ट वन इज द डिसोल्यूशन डिफ्यूजन कंट्रोल ड्रग डिलीवरी सिस्टम। इसमें डिसोल्यूशन और डिफ्यूजन दोनों प्रोसेस का यूज करके कंट्रोल ड्रग डिलीवरी सिस्टम बनाया जाता है। सबसे पहले हमने डिसोल्यूशन कंट्रोल ड्रग डिलीवरी सिस्टम पढ़े और इसके बाद हमने डिफ्यूजन कंट्रोल ड्रग डिलीवरी सिस्टम पढ़े। नाउ वी आर हियर टू डिस्कस अबाउट द कंट्रोल डिसोल्यूशन डिफ्यूजन कंट्रोल रिलीज सिस्टम। द ड्रग कोर इज इनक्लोज इन ए पार्शियली सॉल्युबल मेम्ब्रेन। ड्रग को पार्शियली सॉल्युबल मेम्ब्रेन के अंदर इनक्लोज किया जाता है। ड्रग कोर इज इनक्लोज इन द पार्शियली सॉल्युबल मेम्ब्रेन। पार्शियली सॉल्युबल होती है और रिमेनिंग पार्ट जो इनसॉल्युबल रहता है। ठीक है, देख पा रहे हैं डायग्राम में, रिमेनिंग पार्ट इनसॉल्युबल रहता है। फोर आर दस क्रिएटेड ड्यू टू द डिसोल्यूशन ऑफ पार्ट ऑफ मेम्ब्रेन which permit entry of aqueous media into the core and hence the drug dissolution and diffusion of dissolved drug out of the system। जैसे ही आप इसको डिसोल्यूशन मीडिया में ये ड्रग सिस्टम पहुंचता है तो वहां पे पोर क्रिएट होते हैं। पोर क्रिएटेड बाय द डिसोल्यूशन ऑफ सॉल्युबल फ्रैक्शन ऑफ द मेम्ब्रेन। इसका सॉल्युबल फ्रैक्शन डिसॉल्व होगा जिससे पोर क्रिएट होंगी, है ना, और बाकी का रिमेनिंग पार्ट इनसॉल्युबल मेम्ब्रेन में बच जाएगा। यहाँ से डिसोल्यूशन फ्लूइड एंटर होगा और यहाँ से ड्रग डिफ्यूज होगी। डिसोल्यूशन फ्लूइड अंदर जाएगा और ड्रग डिफ्यूजन होगा। तो पहले डिसोल्यूशन हुआ और डिसोल्यूशन होने के बाद फिर डिफ्यूजन भी हुआ, इसलिए इस सिस्टम को क्या कहते हैं, डिसोल्यूशन डिफ्यूजन कंट्रोल रिलीज सिस्टम। An example of obtaining such a coating is using a mixture of ethyl cellulose with polyvinyl pyrrolidine और methyl cellulose। और इस तरीके की कोटिंग को अपन मिक्सचर ऑफ इथाइल सेलुलोज विथ पॉलीविनाइल पायरोलिडीन और मेथाइल सेलुलोज की हेल्प से बना सकते हैं ये कोटिंग, है ना। तो ये हमने देखा डिसोल्यूशन डिफ्यूजन कंट्रोल ड्रग डिलीवरी सिस्टम। इसमें दोनों प्रोसेस का यूज किया गया है। एक मेम्ब्रेन का यूज करते हैं जो कि पार्शियली सॉल्युबल होता है ना, और फिर उसमें पोर क्रिएट हो जाते हैं। तो पोर क्रिएट होते हैं तो डिसोल्यूशन फ्लूइड उसमें अंदर जाता है और ड्रग डिफ्यूज होकर बाहर आ जाती है। तो इस प्रोसेस को अपन कहते हैं डिसोल्यूशन डिफ्यूजन कंट्रोल ड्रग डिलीवरी सिस्टम। नाउ नेक्स्ट वन इज द ऑस्मेटिकली कंट्रोल रिलीज सिस्टम। These systems are fabricated by encapsulating an osmotic drug core containing an osmotically active drug or a combination of an osmotically inactive drug with an osmotically active salt, e.g. NaCl, within the semi-permeable membrane made from the biocompatible polymer that e.g. cellulose acetate। इस सिस्टम में इस सिस्टम को कैसे बनाते हैं, इसमें सबसे पहले ऑस्मेटिक कोर कंटेनिंग ड्रग
एक कोर बनाते हैं जिसमें या तो अपन की ऑस्मेटिकली एक्टिव ड्रग रहेगी या ऑस्मेटिकली इनएक्टिव ड्रग है तो उसमें ऑस्मेटिकली एक्टिव कोई साल्ट अपन ऐड कर देंगे जिससे ऑस्मेटिकली एक्टिव कोर बन जाएगी। इस कोर को अपन सेमी परमीबल मेम्ब्रेन के द्वारा इनक्लोज करते हैं, है ना, बायोकम्पेटिबल सेमी परमीबल मेम्ब्रेन से इनक्लोज करते हैं हम। ठीक है, इसके बाद क्या होगा, ए ग्रेडियंट ऑफ ऑस्मेटिक प्रेशर इज देन क्रिएटेड। अब जैसे ही ये सराउंडिंग फ्लूइड में पहुंचेगा तो एक ऑस्मेटिक प्रेशर का ग्रेडियंट क्रिएट होगा, अंडर विच द ड्रग सॉल्यूट आर कंटिन्यूअसली पंप्ड आउट of the tablet through the small delivery orifice in tablet coating over the prolonged period of time through the delivery orifice। तो जैसे ही ये सराउंडिंग फ्लूइड्स में पहुंचती है तो यहाँ से ऑस्मेटिक ग्रेडियंट क्रिएट होगा। ऑस्मेटिक ग्रेडियंट क्रिएट होने के कारण वाटर इनसाइड पहुंचेगा, यहाँ पे वाटर आएगा, वाटर होने के कारण ड्रग को रिपेल करेगा और एक डिलीवरी ओरिफिस से ड्रग सॉल्यूशन कंटिन्यूअसली इससे डिलीवर होता रहेगा ओवर ए प्रोलॉन्ग टाइम ऑफ पीरियड। ठीक है, तो इस तरीके से ऑस्मेटिकली कंट्रोल ड्रग डिलीवरी सिस्टम को भी हम बना सकते हैं। इसमें क्या किया गया है एक बार फिर से देखेंगे कि these system are fabricated by encapsulating an osmotic drug pore। osmotic drug pore को अपन encapsulated करते हैं इसमें, या अगर osmotic drug नहीं है, osmotically active drug नहीं है, तब अपन क्या करेंगे, और combination of an osmotically inactive drug with an osmotically active salt, है ना, तो अपन ऑस्मेटिकली इनएक्टिव ड्रग को कंबाइन करेंगे किसके साथ में, ऑस्मेटिकली एक्टिव साल्ट के साथ में, सच एज NaCl के साथ। फिर इसको इंक्लूज करेंगे अपन सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, बायोकम्पेटिबल सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के द्वारा, जिससे जैसे ही यह अपना सराउंडिंग फ्लूइड में पहुंचेगी तब एक ग्रेडियंट क्रिएट होगा ऑस्मेटिक प्रेशर का, ऑस्मेटिक डिफरेंस होगा, ऑस्मेटिक डिफरेंस के कारण वाटर इनसाइड पहुंचेगा, वाटर इनसाइड पहुंचेगा तो ड्रग को यहाँ से आप पंप्ड आउट करेगा और स्मॉल डिलीवरी ओरिफिस के द्वारा ड्रग का सॉल्यूशन यहाँ से पंप्ड आउट होता रहेगा प्रोलॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए थ्रू द डिलीवरी ओरिफिस। तो इस तरीके से ऑस्मेटिकली कंट्रोल ड्रग डिलीवरी सिस्टम को भी बनाया जा सकता है। दिस टाइप ऑफ ड्रग डिलीवरी ड्रग सिस्टम डिस्पेंस द ड्रग सॉल्यूट कंटिन्यूअसली एट द जीरो ऑर्डर रेट। इस तरीके की जो ऑस्मेटिकली कंट्रोल रिलीज सिस्टम बनाते हैं वो जीरो ऑर्डर रेट पर ड्रग की डिलीवरी कंटिन्यूअसली करते रहते हैं, जीरो ऑर्डर को फॉलो करते हैं। द रिलीज ऑफ ड्रग इज इंडिपेंडेंट ऑन द एनवायरमेंट ऑफ द सिस्टम। जो ड्रग का रिलीज है वो इंडिपेंडेंट रहता है, सराउंडिंग इंडिपेंडेंट होता है, इस पे एनवायरमेंट ऑफ द सिस्टम, सिस्टम के एनवायरमेंट पे इंडिपेंडेंट रहता है ना। तो थैंक यू ऑल एंड वी विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट लेक्चर, है ना। Stay safe and healthy. Thank you for your patience. Thank you. Thank you.